students. In my earlier video, I have given you the explanation of the poem Indian Weavers. Now, in today's video, we will deal with the appreciation of the poem. Appreciation बोलने के बाद में कुछ वहाँ पे points निकल के आते हैं जिन points का हमें explanation कराना होता है. These points are like the title of the poem, the poem itself, then again the poet, the theme of the poem, the style that is used in the poem, as well as some special features and the moral, the message that is given in the poem, and lastly the opinion. Okay, so on these points we are expected to give our opinion or again the things that we have understood in the poem. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो एक पॉइंट आता है वो है टाइटल के बारे में. नाउ द इंडियन वीवर्स, एक्चुअली इट इज अ पोएम विच इंडिकेट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएट इटसेल्फ. लेकिन जब यहाँ पे टाइटल की बात आती है तो यहाँ पे इंडियन वीवर्स, इट टॉक्स अबाउट द इंडियन वीवर्स, हाउ and what type of clothes that they prepare on their loom, इसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है. तो टाइटल जो है इंडियन वीवर्स, ये इंडिकेट करती है इंडियन वीवर्स के बारे में और साथ ही में यहाँ पे द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स दैट दे प्रिपेयर, दैट दे हैव टू वीव. ओके, नाउ दिस क्लॉथ्स दे आर अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड सो दे इंडिकेट the various type of festivals or again the rituals these are celebrated in India. And so the title gives an explanation about the theme. Okay, so the theme is indicated properly with the help of the title of the poem. Now the second point, that is poem, about the poem. So the poem, when we read, it is a kind of conversational tone. It is a conversational tone that actually attracts our attention. Now, what thing has given the poem the conversational tone? Conversational tone जो है इस पोएम में है, और वो कैसे आई वहाँ पे? तो उस पोएम में यूज किया हुआ एक पर्टिकुलर एक पोइटिक डिवाइस, और जैसे एक पोइटिक क्रिएटिविटी स्टाइल हम कहेंगे, और वो है क्वेश्चन आंसर मेथड. पोएम में क्वेश्चन आंसर मेथड से हमें एक वहाँ पे पता चलता है कि व्यूअर्स को क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उन व्यूअर्स जो है वो उस क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं. दे आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. ओके, और ये आंसर जो है इस क्वेश्चन और आंसर में हमें एक तरह से पोएम का थीम जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो हमारे इंडिया की एक, जैसे हम बोलेंगे कि द स्पिरिट ऑफ इंडिया और एक्चुअली द ट्रू हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द पोएम. अगेन इट डिपिक्ट्स द ट्रेडिशनल एंड कल्चर particularly, and the various type of colors which are used in the poem, they also indicate about the life. Means the colors which are used in the first stanza, we find the color that is the blue bright color. In the second stanza we find the color that is the purple and the green color, and in the last stanza the white color that is used. So all these colors, they talk about the journey of life, okay, and the various stages of life. So this poem particularly talks about the philosophy of life, as well as here it depicts the loom workers or the weavers and what type of clothes that they prepare for us. Then the poet, as we know, this is a very famous poem written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is also known as, with her pet name, with her another name, that is her literary name, that is the Nightingale of India. She is known as Nightingale of India, and the reason for as being called as Nightingale of India, that is because of the simplicity of her poem. She truly depicts the core of India, the heart of India,
the culture of India that just peep with the help of her poems, and that is the speciality of her poems. And again, in this poem also she has talked about the very important aspect of our society. These are the weavers. So Indian weavers, that is the poem. The poem has the another speciality, it is the rhythmic quality. That's why also सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि उनकी पोएम में हमें एक तरह से सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है, उनकी पोएम में हमें एक रिदम देखने को मिलता है, सिंगिंग लाइक क्वालिटी है उनके पोएम में। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमें वो बहुत ही पसंद है। सभी द रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट दे actually love her because of this simplicity. Again we can say that she has tried to depict the soul of India, okay, and she has the another quality, that is actually she is very she used to write the poems very short, as this poem is also. This is only 3 stanza poem and every stanza has 4 lines, okay. तो यहाँ पे हमें एक तरह से क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है इनकी पोएम में हमें देखने को मिलती है, और इनका एक जो एक थॉट कंटेंट जो होता है वो एक जैसे हम जिसको बोलेंगे मानवतावादी, तो इस तरह का एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग जो है इस पोएट की हमें देखने को मिलती है। अभी थीम के तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द थीम ऑफ द पोएम। नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? Actually, poetess talks about the different stages of life. The different stages of life, they are depicted with the different stages of the day, means the different time of the day. For example, early in the morning when the weavers are weaving their cloth, at that time actually they are weaving it for a newborn child, and which is blue in color, okay. Then the second stage, the another stage, that is means यहाँ पे ये पहली स्टेज हो गई, बर्थ की स्टेज हो गई, और सेकंड स्टेज जो आती है हमारे लाइफ में वो होती है यंग एज। यंग एज में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो है मैरिज। तो यहाँ पे वीवर जो है वो भी ऐसे ही मैरिज के लिए वो कुछ बुन रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं वो, और उस कपड़े का कलर जो है वो एक जैसे हमने हेल्सियन बर्ड, ये हमने देखा था एक इमेजरी वहाँ पे। उसके बाद में अभी सेकंड स्टांजा में यहाँ पे जो इमेजरी यूज की हुई है वो है एक पीकॉक की। तो पीकॉक के प्लूम्स जो रहते हैं उस तरह का वो एक कपड़ा जो है वो बुन रहे हैं यहाँ पे। दैट इज फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ, दैट इज एक जैसे वो घूंघट जो होती है दुल्हन का, वो घूंघट तैयार करे वहाँ पे, ओके। सो इट इज द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन, वो प्रिपेयर करे बोले यहाँ पे। तो इस तरह से एक सेकंड स्टेज है ये, और ये जो टाइम जो है जब यहाँ पे ये ऐसे व्यूवर्स बुन रहे वो है द इवनिंग टाइम, ओके। नाउ ये मैरिज पर्पज के लिए। और इसके बाद में फाइनली जो लास्ट स्टेज आती है वो है हमारे लाइफ की डेथ। तो यहाँ पे एक वाइट श्राउड जो है एक डेड पर्सन के लिए, वो यहाँ पे नाइट के टाइम में बुन रहे। सो दैट इज द थीम ऑफ द पोएम, दैट इज द डिफरेंट कलर्स, अगेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, दे आर डिपिक्टेड with the help of the colors and with the help of the day time, means here the day, evening and the night time, okay. So different parts of a day, they are used to depict the stages of our life. इसके बाद में स्टाइल की बात करेंगे। पोएम इंपॉर्टेंट होती है वो एक स्टाइल। तो यहाँ पे इट्स द यूज ऑफ लैंग्वेज। स्टाइल बोलने के बाद में इट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज। सो हाउ इज द लैंग्वेज दैट इज यूज इन द पोएम? जब लैंग्वेज हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही स्वीट, सिंपल और एक रिदमिक लैंग्वेज इस पोएम में यूज की हुई है। यहाँ पे स्वीटनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिदम है, साथ ही में एकदम इजी वर्ड्स का यूज किया हुआ है, एक गहराई वाला थीम है, लेकिन इस गहराई वाले थीम को बहुत ही एक डीप थीम है, एक जैसे फिलोसॉफिकल एक जैसे एक यहाँ पे बात कही हुई है, ओके। तो लाइफ के बारे में कुछ भी श्योर नहीं है। लाइफ जो है
वो वीवर वही है, लेकिन वो जो कपड़ा बुन रहे हैं वो अलग अलग टाइप का है, और वो कपड़ा जो है वो अलग अलग लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी दुनिया देखी हुई है। उसके बाद में जो एक नई दुनिया में आने वाला है, ऐसे अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए यहाँ पे वो कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं वो। फिर भी यहाँ पे एक तरह से हमें वो अलग अलग स्टेजेस जो है वो एकदम सिंपल तरीके से बताई हुई है, तो यही एक सिंपलिसिटी है। इसके बाद में पोएम में हमें देखने को मिलती है कलकियल लैंग्वेज। ओके, कलकियल लैंग्वेज, तो कलकियल जैसे मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूँ, तो कलकियल यानी एक जैसे स्पोकन फॉर्म होता है वो। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशनल नरेटिव स्टाइल जिसको बोलेंगे, तो पोएम में हमें एक नरेटिव स्टाइल देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर की ये मेथड यूज की हुई उसको नरेशन स्टाइल दिलाने के लिए। इसके बाद में कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर एक सिंबल यहाँ पे यूज किए हुए, कलर का सिंबल यूज किया हुआ है। कलर बताने के लिए यहाँ पे हमें जो यूज किया हुआ है वो है जैसे हेल्सियन बर्ड है। इसके बाद में एक बर्ड जो दूसरा आता है वो पीकॉक बर्ड है, उनके फीदर जो है प्लूम्स जो है वो यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो इसके तरह से यहाँ पे एक कलर इमेजरी देने की कोशिश की हुई। उसके बाद में पोएम में हमें रिदम देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे एक राइम स्कीम भी यूज की हुई है, और वो कौन सी है, ए ए बी बी, ये राइम स्कीम यहाँ पे यूज की हुई है। ध्यान से इसको नोट करना। द पोएम इज अ राइम्ड पोएम एंड इट हैज द राइम स्कीम दैट इज ए ए बी बी। Then again, the different type of figure of speeches are also used here. And what are the figure of speeches? The figure of speeches like simile. अगर आप देखोगे तो every third line of the every stanza that is actually employed or that is prepared in a simile structure. ठीक है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। इसके बाद में मेटाफर का यूज है यहाँ पे, बिकॉज द होल पोएम इज अ मेटाफरिकल फॉर्म है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे दे आर यूज्ड एज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ करके। ओके, तो ये मेटाफरिकल यूज है। उसके बाद में अलिट्रेशन का यूज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में और एक है यहाँ पे इमेजरी एक फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम बोलेंगे, जिसमें पिकारेस्क्यू क्वालिटी होती है, पिकारेस्क क्वालिटी होती है, वहां पे पिक्चर लाइक क्वालिटी होती है, तो उसको पिकारेस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक फिगर ऑफ स्पीचेस और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोइटिक डिवाइसेस जो है वो यहाँ पे यूज किए हुए। इसके बाद में यहाँ पे हम स्पेशल फीचर के बारे में बात करेंगे। तो स्पेशल फीचर जो हमें देखने को मिलता है तो वो है एक रिदम। पोएम में एक रिदम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पोएम में हमें एक जो कहने का तरीका जो है, यानी पोएटेस ने जो यहाँ पे एक बहुत ही सीरियस थीम जो है वो इसको इतनी सिंपल तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर इमेजरी, द सिंबल्स, और साथ ही में यहाँ पे एक जैसे जो मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो यूज की हुई, इसकी वजह से इतना एक डिफिकल्ट एक जो मोरल जो है एक लाइफ का वो हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो एक सिंबॉलिक पोएम है, साथ ही में यहाँ पे हम कहेंगे मेटाफोरिकल पोएम है। एक तरह से यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि एक इमेजरिकल पोएम है यहाँ पे, ठीक है। तो एक पोएट ही हैज पेंटेड a kind of a picture of the Indian viewers, okay, the viewers who are particularly working tirelessly at the different stages of life, and actually this poem it talks about the different stages of life, okay, and they are the stages of life that they are actually the birth, actually the another part that is a marriage, and the last one it is the death, okay. So these are the three stages of life which are the very important stages of life, and they are explained here with the device of the day and again the Indian viewers, okay. Then our opinion about the poem. Now here ओपिनियन एक मोरल का भी होता है, तो मोरल वैसे कुछ है नहीं यहाँ पे। मोरल एक ऐसा है कि हम जैसे स्पेशलिटी में हमने उसको देखा हुआ है, तो मोरल जो है तो यहाँ पे लाइफ इज विथ द हैप्पी एंड अगेन द एक्चुअली
द हेवी हार्टेड मोमेंट्स, और ये दोनों के लिए हमें रेडी रहना है. एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ वी विल हैव टू फेस देम, एंड सो वी शुड लिव अवर लाइफ. ओके, तो ये कैसे हम इसको कह सकते हैं. तो यहाँ पे जो पोएम जो है, इट गिव्स अस और इट डिपिक्ट्स अ पिक्चर ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी, और वो है यहाँ पे द वीवर्स. दोस्तों, मैं यहाँ पे एक आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ इंडियन व्यूवर से. मेरे बहुत ही अच्छे खासे दोस्त है, पराग करके, पराग होजरी का, और वो आसाम से बिलोंग करते हैं, और उनकी मम्मी जो है ट्रेडिशनल लूम वर्कर, यानी वो वीवर है, और इतना अच्छा वो कपड़ा बुनती है. तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द क्लॉथ्स दैट दे हैव वूवन. तो यहाँ पे मैं आपको उनकी एक फोटो भी यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ. सो यू विल हैव a look at it. Okay, तो देखिए इसे. Now here we are going through the significance or the opinion of the poem, that we get a clear understanding. Okay, so with the help of the poem we get a clear understanding about the tradition of our India, and again the important aspect of our culture. These are the loom workers, means here the weavers, as well as here the poem is a very rhythmic poem, and the simplicity of the language, and again the rhyme scheme, it has been helpful to make it a rhythmical poem, and again a singing like poem. Okay, and I really like the poem because of its simplicity, and again the imagery that is used in the poem. Okay, so here this is the appreciation of the poem. तो इस तरह से आपको appreciation इसका लिखना है. Okay.